شہر بیجاپور جو کسی زمانے میں ملک دکن کا دارالسلطنت تھا، ممبئی سے ناک کی سیدھ جنوب و مشرق میں 240 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جیسے ہی کوئی شہر کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہاں کی ویرانی اور تباہی دیکھ کر محو حیرت ہو جاتا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ ثانی جو بیجاپور کا بادشاہ تھا، اس نے 1580 عیسوی سے 1627 عیسوی تک حکومت کی۔ اسی نے مکہ مسجد تعمیر کرائی۔ اسی جگہ پر پہلے کے صوفیاء کرام نے وہاں پر مسجد بنائی تھی، اور اس کے گر جانے کے بعد ابراہیم عادل شاہ ثانی نے وہاں مسجد تعمیر کرائی۔ مکہ مسجد کا جو علاقہ ہے وہ بیجاپور کا جو پہلا علاقہ اسے کہہ سکتے ہیں۔ وہاں پہ یہ بیجاپور صدر مقام ہونے سے پہلے ایک چھوٹا کریا تھا، اس کا نام تھا بجن ہلّی۔ تو وہاں کا جو ہندو بادشاہ تھا وہ فصیلیں بھی وہاں پہ بنایا ہے، آج بھی وہ فصیلیں موجود ہیں۔ تو وہ علاقہ جو ہے بیجاپور کا سینٹر ہے، اسی لیے وہاں پہ ارکیلا بھی، بیجاپور کے جو سلاطین ہیں وہ ارکیلا بھی وہاں پہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر وہ بجن ہلّی کا علاقہ جو ہے پرانا جو بیجاپور اسے ہم کہہ سکتے ہیں، بجن ہلّی کا علاقہ ہی وہ بڑھتے ہوئے ایک بیجاپور صدر مقام، عادل شاہی صدر مقام بنا۔ تو وہ فصیلیں ہیں، وہ ہندو راجا کی بنائی ہوئی فصیلیں ہیں۔ وہاں پہ ٹھہر کر جو بھی دشمن بیجاپور یا بجن ہلّی پہ حملہ کرنے والے ہوتے تھے، ان کو دیکھ کر اور ان کو یہاں کی حفاظت کے لیے وہاں پہ اوپر چڑھ کر اس کی حفاظت کا انتظام وہاں سے ہی پلاننگ وغیرہ کیا کرتے تھے۔ یہاں کا طرز تعمیر اور جامع مسجد کا طرز تعمیر ایک جیسا دکھائی دیتا ہے۔ مکہ مسجد چھوٹی ہے اور جامع مسجد بہت وسیع و عریض۔ اور جو بیجاپور کے پہلے دور میں آئے ہوئے صوفیاء کرام، خاص کر کے پیر مہابری کھنڈایت، وہاں پہ ایک اپنی مسجد تعمیر کیے تھے۔ کئی سالوں تک وہ مسجد رہی، اس کے بعد وہ مسجد گر گئی۔ اسی جگہ پہ ابراہیم عادل شاہ دوم یا ثانی اسے ایک مکہ مسجد تعمیر کیا۔ یوں تو مسجد کا احاطہ بڑا ہے اور صحن کافی کشادہ ہے، پر اندرون مسجد جہاں چھت میسر ہے 200 لوگ ہی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ اس کے ارد گرد کمانوں کی چھت شامل کر لی جائے تو تقریباً 2000 لوگ بیک وقت نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر پورے احاطے پر نظر ڈالیں تو بلا مبالغہ 4000 لوگوں کی گنجائش اس میں موجود ہے۔ داخلی دروازے سے اندر آتے ہی پہلی نظر میں دل یہ پکار اٹھتا ہے کہ یہ مسجد یقیناً عورتوں کے لیے ہی بنائی گئی ہوگی۔ بیجاپور کی جو عورتیں ہیں وہاں پہ عبادت کرتی ہیں، مرد وہاں پہ عبادت نہیں کرتے۔ اس کی جو ڈیلیکیسی ہے یا اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر کوئی بھی کہہ سکتا ہے وہ مسجد صرف عورتوں کے لیے ہی تعمیر کی ہوئی ہوگی۔ اسی داخلی حصے کے ڈھانچے کو اگر باہر سے دیکھیں تو گنبد اور مینارے، چھوٹے چھوٹے کنگورے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی کمانیں تقریباً 500 کی تعداد میں یہاں موجود ہیں۔ اس مکہ مسجد کو آپ دیکھیں گے تو یہاں کا جو طرز تعمیر ہے اور جو جامع مسجد کا طرز تعمیر ہے، دونوں ایک طرح ہی ہیں، ایک جیسے ہی آپ کو طرز تعمیر ملے گا۔ مکہ مسجد صرف چھوٹی ہی ہے اور یہ جامع مسجد جو بہت بڑی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ شاہی جو عورتیں تھیں اور جو شاہی خواتین تھیں وہاں پہ عبادت وغیرہ کیا کرتی تھی۔ تو خاص کر کے جو گنبد کا ڈیزائن ہے اور وہ پورے جو آرچز پہ جو گنبد ٹکی ہوئی ہے، وہی طرز تعمیر آپ کو جامع مسجد، بیجاپور کے بڑی جامع مسجد جو ہے اس میں آپ کو ملے گا۔ ایک چھوٹے سے ڈھانچے میں نقش و نگار میں اتنی محنت خال خال ہی دیکھنے میں نظر آتی ہے۔ یہ مسجد ان پرانی مسجدوں میں سے ایک ہے
जो अब भी महफूज हालत में हैं। अलबत्ता इसके कुछ हिस्से तवालते ज़माना की वजह से मुतासिर ज़रूर नजर आते हैं। इस मस्जिद के चारों तरफ इंतहाई लंबी दीवार बनी हुई है, जिससे अंदाजा होता है कि हिफाजती नुक्ते नजर से ये दीवारें खींची गई होंगी। यहां तक कि दीवार के पीछे से मस्जिद दिखाई भी नहीं देती। इस दीवार की चौड़ाई 6 फीट और लंबाई 80 फीट है और ये मस्जिद को 3 तरफ से घेरे में लिए हुए है। इस मस्जिद के चारों कोनों पर 4 सुराख दिखाई देते हैं, जिनसे बारिश के पानी की निकासी हो सके। मौजूदा जमाने के लोगों को नहीं मालूम कि बारिश का पानी कहां चला जाता है, और इसकी दीवारों में भी चारों तरफ सुराख बने हुए हैं, जिनसे पानी बआसानी बाहर निकलता है। मस्जिद का मौजूदा दाखिली दरवाजा, जिसके सामने बाहर के हिस्से में बहुत बड़ा हौज था, उससे न सिर्फ वजू और तहारत की दीगर जरूरियात को पूरा किया जाता था, बल्कि आस-पास के लोग भी इससे इस्तिफादा करते थे। ठीक इसी हौज से लगा हुआ एक पत्थर का बड़ा हौज दिखाई देता है। इस तरह के हौज पूरे बीजापुर में जा बजा आज भी मौजूद हैं, जिनसे आबरसानी के इंतजामात और उनकी जरूरियात को पूरा करने के लिए काफी था। यहां भी मस्जिद के सामने वाले हिस्से में पत्थर का बना ये वाटर टैंक महफूज हालत में मौजूद है। मस्जिद के बाहरी हिस्से का हौज वसी व आरीज होने के साथ साथ ज़ेरे ज़मीन एक इमारत भी मौजूद थी, जिसमें खेलने और तफरीह करने वाले लोग आज भी जिंदा हैं और उसके शाहिद हैं। यहाँ पे पहले पानी का हौज था, इसके नीचे जो है अंडरग्राउंड है। मस्जिद के सामने के दोनों किनारों पर 2 इंतहाई लंबे चौड़े बुर्ज दिखाई देते हैं, जो बाहर से किलों के बुर्ज मालूम होते हैं, जिनमें खड़े होकर हिफाजती दस्ते पहरा देते रहे होंगे। चूंकि ये इलाका शाही खानदान की रिहाइश और क़याम का था और यहाँ इस मस्जिद में शाही खानदान की औरतें इबादत व रियाजत के लिए हाजिर हुआ करती थीं, इसलिए भी हिफाजती इंतजामात का होना यहाँ लाजमी था। अलबत्ता ये भी कहा जाता है कि इन बुर्जों में खड़े होकर अजान भी दी जाती थी। इन बुर्जों के अंदर ऊपर तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां मौजूद हैं, अलबत्ता इसके रास्ते हालिया दिनों में बंद कर दिए गए हैं। ये रास्ता दोनों तरफ मौजूद है, जिनसे दोनों बुर्जों में दाखिल हुआ जा सकता है। ये सामने जो बंद रास्ता नज़र आ रहा है आपको, ये ऊपर जाने के लिए पहले रास्ता था, जिसकी सीढ़ियाँ अब भी मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ रास्ता बंद किया गया है। और इसके अपोजिट में भी सेम वैसा ही है जो बंद किया गया है, वहाँ पे भी ऊपर ब्रिज पर जाने के लिए रास्ता है। बहरहाल हकीकत जो भी हो, इतना जरूर है कि इन बुर्जों से कई काम लिए जाते रहे होंगे। इस मस्जिद में दूसरी शाही मस्जिद की तरह अंदरूनी हिस्से में एक ऐसा हौज था, जिसमें पानी किसी बेश बहा चश्मे की तरह हरान उबलता रहता था। ये बेगम तालाब बोल के एक तालाब है, जहाँ से पूरे बीजापुर को पानी सप्लाई होता था, जिसकी अंडरग्राउंड निशानियाँ अभी बाकी हैं। और एक निशानी यहाँ पे भी है जो आपको नज़र आ रही है। ये देखिए, जो पानी का आना जाने का रास्ता है, इसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये पानी का इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है, पानी सप्लाई का। इससे पानी जो है कभी भी हर वक्त पानी इसमें बाहर से भी आता था, और अंदर एक पानी की जो फवारा जिससे कहते हैं, वो पानी का उसमें हमेशा उबलता रहता था। इसके उबाल को कम करने के लिए इसके अंदर पत्थर की एक सिल लगा दी गई,
ताकि पानी कम मिकदार में निकले। आज भी इसके निशानात मौजूद हैं। आज भी उसके निशानात मौजूद हैं। अलबत्ता वो सोते क्या थे, कैसे थे और कैसे खुश्क हो गए, इसका पता तो तभी लगा सकते हैं जब इसकी खुदाई हो। वैसे इसके बाहर बड़े हाउस का होना, जहां आज झाड़ झंकाड़ खड़े हैं, और उससे लगा हुआ पत्थर का वाटर टैंक, सब एक दूसरे की मौजूदगी, इंतजाम और बाहमी रब्तो ज़ब्त को समझने के लिए काफी है। इस मस्जिद में 2 दरवाजे हैं, एक दाखिल होने का और दूसरा बाहर जाने का। दाखिले का दरवाजा तो खुला रहता है और औरतें आज भी जब जी चाहे आती हैं, लेकिन आने वाले दरवाजे के ठीक सामने जो निकलने का दरवाजा है वो बंद कर दिया गया है। इस मस्जिद की चाबी मोहल्ले की औरतों के पास रहती है और कोई भी औरत आकर इसमें इबादत कर सकती है। इस मस्जिद को आसारे कदीमा ने अपने तहफ़्फ़ुज़ो निगरानी में ले लिया है ताकि हिंदुस्तानी तारीख की इस कदीम तामीर व तारीख की हिफाजत हो सके। 2 बुर्जों के अलावा मस्जिद के चारों तरफ कमानों का एक तवील सिलसिला है, जिनमें औरतों की हिफाजत के लिए दस्ते खड़े किए जा सकते हैं। ये कमाने मस्जिद के पिछले हिस्से में 5 हैं और दाईं और बाईं जानिब 9 की तादाद में हैं, जबकि सामने 7 हैं। इस मस्जिद में जहां छोटा हौज खवातीन के वजू और तहारत के लिए था, वहीं पास में एक कमरा है जो 10 बाई 10 का है और वो आज भी मौजूद है। ये जो मेरे पीछे जो कमरा है, ये पुराना ही कमरा है, जिसमें से अंडरग्राउंड से बाहर जाने के लिए एग्जिट रास्ता था, जो अब बंद हो चुका है। कहा जाता है कि इसके अंदर से एक रास्ता खुलता था जो ज़ेरे ज़मीन को जाता है, और इसमें कोई ताज्जुब नहीं, क्योंकि यहाँ शाही खानदान की ख़वातीन ही इबादत और रियाजत के लिए हाजिर हुआ करती थी। मक्का मस्जिद का अंदरूनी मंजर, इसकी जसामत, कदो-कामत दूसरी मस्जिदों की बनिस्बत इसमें सारी चीज़ों का छोटा होना, नाजुक होना कुछ इस बात की गम्माज़ी करता है कि बनाते वक्त ही बनाने वाले ने इसे सिंथे नाजुक को ही सामने रखकर बनाया है। मस्जिद का अंदरून दीगर शाही मसाजिद की तरह पत्थरों से ही बना है, और ये पत्थर वही पत्थर हैं जो बीजापुर की दीगर शाही इमारतों में इस्तेमाल किए गए हैं। इनके डिजाइन दूसरी मसाजिद से बिल्कुल मुख्तलिफ तो नहीं है, अलबत्ता नज़ाकत और इख्तिसार जरूर दिखाई देता है। ये मस्जिद 12 खंभों या सुतूनों पर खड़ी है। इसका मेहराब और इसका साइज भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको जसामत और कदो कामत में नज़ाकत साफ झलकती दिखाई देगी। दूसरी मसाजिद की तरह इस मस्जिद में भी रोशनी के इंतज़ाम के छोटे रोशनदान कमानों के अंदर से दिखाई देंगे, लेकिन मस्जिद की जसामत के हिसाब से यहाँ रोशनदान भी काफ़ी छोटे हैं। मुलम्मा कारी के लिए इसमें भी गज का इस्तेमाल किया गया है। इस मस्जिद की मेहराब को गौर से देखें तो आपको पूरी मस्जिद का नक्शा दिखाई देगा। इसे पत्थरों में तराश कर नक्श निगारी भी कर दी गई है, जिससे इस मस्जिद के हुस्न में इजाफा होता है। मस्जिद का पूरा नक्शा मेहराब के दाईं और बाईं जानिब तराश कर बनाया गया है, यानी मस्जिद की कमाने, इसके गुंबद और मीनारे सारे हिस्से इसमें तराश कर बना दिए गए हैं। ऐसा लगता है कि एक ही पत्थर में
तराश कर पूरा मेहराब बना दिया गया हो। इस मस्जिद के दाखिली हिस्से में कई गुंबद अंदर से दिखाई पड़ते हैं, लेकिन दरवाजे के शुरू के गुंबद में तराशो खराश और खूबसूरत डिजाइन देखने को मिलते हैं। बकिया गुंबद सादा हैं। इन गुंबदों में बिल्कुल ऊपर की जानिब लोहे की एक कड़ी तकरीबन तमाम तामीरात में देखने को मिलती है, जहां झूमर लटकते थे और रात में उनमें किंदीलें रोशन हुआ करती थी। जैसे आजकल झूमर में इलेक्ट्रॉनिक बल्ब सजाए और लगाए जाते हैं। सिर्फ औरतों के लिए खास मस्जिद हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया में खुद अपनी मिसाल आप है। मर्दों की तरह औरतें बाजमात नमाज अदा तो नहीं करती और ना ही अजान देती हैं, बल्कि फर्दन फर्दन खुदा की याद में लगी रहती हैं। हिंदुस्तान में आज भी कई मस्जिदें ऐसी हैं जहां औरत और मर्द पर्दे के एहतमाम के साथ नमाज पढ़ते हैं, लेकिन ऐसी मस्जिदें नायाब हैं जहां सिर्फ औरतें ही नमाज पढ़ती हैं।